Okay. Statement of figures of both the year, current year and previous year will be recorded in statement of profit and loss according to the new format. According to the new format, it is vertical one. Okay. It is important because format will remain same and question based on this will be asked in chapter number 3 and 4. So if you are clear with the format of balance sheet, each and every item, heading, subheading, if you are clear with each and every heading and subheading of this statement of profit and loss, how it is prepared, it will be simple for you. मैं कह रहा हूँ chapter 3rd and 4th you can finish. A child should be able to finish in 2 days only. 2 days chapter 3, 2 days chapter 4. But if you are not thorough with this, it may take you 10 days, 15 days, 20 days. So it depends upon you. Okay. So particulars. This is for note number. अभी बताएंगे कहां पर लिखने होता है particulars. Revenue from operations. Revenue from operations is the amount received from sales of goods, services, right? And goods, if we manufacture, तो manufacture करके बेचते हैं उसका amount आ जाएगा. If we purchase from somebody and sell it, वो trading business हो गया आपका. You are only trading, just bringing goods from somewhere, finished product and selling it to others. Okay. Then in this revenue from operation, we have to add other income. अभी अभी आपको बताइए. GRID, grid, get rid of, short में gain on sale of fixed assets, rent income, interest income, dividend income. In case of non financing companies, ये भी नोट करें, only in case of non financing company. Finance company अगर कोई होगी बेटा, if company is dealing in finance company कोई होगी, उसके लिए rental income, interest income, dividend income, they are normal income. They are called normal business income for finance companies. उनका तो काम ही यही होता है. उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए. और जो दूसरे बिजनेस है उनके लिए ये एक तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं. ये एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर आपको क्या मिल रहा है, ये रेंट, डिविडेंड. क्योंकि आपका बिजनेस तो हो सकता है कि गारमेंट्स का है, बट आपने बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, पैसे कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, सो यू आर गेटिंग this as your investing activities. But for finance companies, these will be normal business activities. So this one, once again I will explain each and every heading under the expenses. Cost of material consumed, तो आपको पता चल गया, that is equivalent to opening stock plus, इसको नोट करिए, opening stock plus purchase, net purchase. Opening stock plus net purchase, because net purchase is purchase minus purchase return. Net purchase is purchase minus purchase return. So opening stock plus net purchase plus direct expenses.
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Then purchase of stock in trade, as I told you, purchase of stock in trade and change in inventory. Change in inventory means difference between the opening inventory and closing inventory. Opening जो थी वो क्या क्या है और लास्ट में आपके पास क्या क्लोजिंग में बचा है. इन्वेंट्री का मतलब सोचते हैं ना, इन्वेंट्री वर्ड इज यूज्ड वेयर व्हेन द कंसर्न इज मैन्युफैक्चरिंग और जहां पर प्रोडक्शन होता है, बिकॉज वहां पर इन्वेंट्री जो है चेंज होती रहती है. रॉ मटेरियल है, थोड़ा यूज कर लिया तो रॉ मटेरियल चेंज हो गया उसकी इन्वेंट्री. फिर जो है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सेमी फिनिश्ड होते हैं, पूरी तरह भी तैयार नहीं हुए, उनका स्टॉक होता है. देन देयर इज फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो इन सबको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है. आप सिर्फ ये कहते हैं कि रॉ मटेरियल हमारा जो है स्टॉक ये है और वहां पर तो स्टॉक क्या हो गया, रॉ मटेरियल क्या हो गया, आगे यूज हो गया. उसके बाद सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ये है, बोले अभी तक फिनिश प्रोडक्ट क्या है, बोले अभी तो कुछ भी नहीं है. इसका मतलब थोड़ी कि कोई काम ही नहीं हुआ है. वर्क इज इन प्रोग्रेस. इवन वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्या होता है, स्टॉक. सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इन द चेंज इन इन्वेंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट इज employees benefit expenses. Employees benefit expenses refers to expenses made by the firm on salary. नोट कीजिए, सैलरी, कमीशन, उनको वेजेस, बोनस, वेजेस, बोनस, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, क्या चीज, वट एवर एक्सपेंसेस आर डन फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बिजनेस में पढ़ा ना आपने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेमिनार्स पे उनके खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डियरनेस, मेडिकल एक्सपेंसेस जिनकी जो उनके होते हैं, उनके आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के लिए जो पैसा आप लगाते हैं उसमें वो हो गए, क्लेम्स हो गए, ग्रेचुटी हो गई, ग्रेचुटी मनी भी पे किया जाता है एम्प्लॉयज को, वो हो गए. तो वो सारा सारा एक्सपेंस आप अगर क्वेश्चन में दिया होगा यू विल शो हियर. देन उसके बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट्स. फाइनेंस कॉस्ट दोज जो आप रेज करते हैं जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, आउटसाइड डेब्ट्स, अभी पढ़ा था ना इन द चैप्टर बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड. तो वट एवर यू स्पेंड ऑन दैट, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट. जैसे इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर बोरोइंग कॉस्ट भी होती है आपकी. जब आप मनी बोरो करते हैं उसमें भी कई कॉस्ट होती है आपके. डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स. डिस्काउंट में अगर आप डिवेंचर इशू करते हैं तो आपको पैसे तो आ रहे हैं बट यू आर चार्जिंग लेस, वो भी आपका है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे आपको बताया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सब कौन से एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट, राइट. अदर बोरोइंग. डेप्रिसिएशन आपको बताइए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स एंड ऑल्सो amortization expenses. When we amortize or write off, when we amortize or write off some expenses, वो भी आपके यहां पर आएंगे. डेप्रिसिएशन, इसके साथ एक और डेप्रिसिएशन है, amortization और राइट ऑफ करते हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था ना,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट वी डू इन दैट, वो खर्चा जो एक साथ हुआ होता है उसे वी राइट ऑफ इन डिफरेंट ईयर्स, इसलिए अगर उसी साल जिस साल वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बिकॉज दे आर ह्यूज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दैट ईयर्स प्रॉफिट विल come down. No dividend can be given in that year. So we divide it into 2 years, 3 years, 4 years. हर साल के प्रॉफिट में से फिर वो जो है, तो वो भी तो एक खर्चा हो गया, एक्सपेंस, दैट इज आल्सो रिटन हियर. इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट कीजिए अदर एक्सपेंसेस. ये जो अदर एक्सपेंसेस है, इन दिस देयर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस. कोई छोटे मोटे जो आपके नॉर्मल खर्चे थे, carries inward, carries outward, freight, rent, rates and taxes, bad debts written off, provision for bad debt, audit fees, trade expenses. Please write it. Once you write, you will be able to remember them for longer time. Trade expenses, postage, courier, telephone. Indirect expenses, if you remember, indirect expenses in trading and profit and loss expense account, तो वो आप यहाँ पर other expenses में जो है उनको काउंट करेंगे. All those expenses, भाई सारे expenses जब तक आप माइनस नहीं करेंगे all expenses, तो कैसे पता चलेगा what is the total income? And you can see very well in this type of format, जो ये वर्टिकल बना रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, सिर्फ स्पेसिफाई पर्टिकुलरली कौन सा किस नेचर को बिलोंग करता है ये शो करती है. वरना यही आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते थे, लेकिन वहां आप ये नहीं सोचते थे कि ये कौन सा एक्सपेंस है. एक्सपेंस है बस. वहां आपने ये नहीं सोचा कि ये जो है ये वाला एक्सपेंस है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट वाला एक्सपेंस था भाई. ये यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं कि अदर एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट वाले ज्यादा वो वाले एक्सपेंसेस ले रहे हैं जो रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस हैं, वहां आप उसे लाइन से लिखते जा रहे थे, राइट. बट हियर इट इज कैटेगराइज्ड एंड पुट स्पेसिफिकली अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग और सब हेडिंग, दैट्स ऑल. तो यही है बस फॉर्मेट. दिस इज द ओनली फॉर्मेट वेयर यू हैव टू राइट डिफरेंट एक्सपेंसेस and subtract them from the total income. Then this will be, वहां पर लिखना पड़ेगा total income before tax, total income before tax. अब इसके बाद आप यहां पर टैक्स माइनस कर दीजिए. नंबर 6, इनकम टैक्स का रेट यहां पर दिया हुआ, वो इनकम टैक्स यू विल राइट हियर. टैक्स यू विल राइट कि मान लो 30% है, आपकी इनकम यहां पर आई थी 1 लाख, आप उसका 30% निकालेंगे, यू विल राइट हियर 30,000. यहां पर आ गया 1 लाख. देन नंबर 7 विल बी इनकम आफ्टर टैक्स. दैट विल बी 5 minus 6. That will be 5 minus 6. Total income minus income tax. Total income minus whatever is the tax paid. Is the format clear? अभी पूछेंगे आपसे. I will ask you. फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको सारे पता होने चाहिए, एंड हर एक के अंदर क्या क्या आएगा ये पता होना चाहिए. That will be very very helpful in chapter number 3 and 4. आप कहेंगे अरे विद इन 1 day, बिकॉज उसमें क्वेश्चन भी जो है 12 15 क्वेश्चन है बस, 3rd and 4th चैप्टर. So is the format clear to everyone? Nabil, Nissan, format. Once again, from the starting, revenue from operations, all inflow of
इनफ्लो, समझ रहे हैं ना, पैसे आ रहे हैं, आप उसको ऐड कर रहे हैं, एक साथ लिख लिया, उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा दिस इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम्स के नाम पे हो सकता है कि वहां पर तो हेडिंग नहीं दी होगी, हो सकता है अदर इनकम डायरेक्ट लिखा हो 50,000, या हो सकता है अदर इनकम के जो ये बताया आपने वहां पर 2 आइटम दिए, फिर आप उन दोनों को ऐड करेंगे, देन यू विल राइट इन अदर इनकम, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करके यू विल राइट थर्ड इज टोटल इनकम। देन देयर विल बी गिवन डिफरेंट एक्सपेंसेस, नाम से नहीं दिए होंगे इनके, वहां तो बंच में दिए होंगे, यू हैव टू सेपरेट देम। डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट है तो फाइनेंस कॉस्ट लिख के उसके आगे, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कोई दिया है, सैलरी दिया है, बोनस दिया है, कोई कमीशन दिया है, कोई प्रोविडेंट फंड का दिया है, देन यू विल राइट इट एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। इन्वेंट्रीज का चेंज दिया है उसमें ओपनिंग क्लोजिंग, वो आप दिखाएंगे यहां पर। वैसे ही अदर एक्सपेंसेस का अगर कोई आइटम दिया है, अदर एक्सपेंसेस, फिर वहां पर उन्होंने कार्टेज, कैरेज, इंटरेस्ट पेड, ये सब चीजें दी है, तो दैट ऑल्सो यू विल शो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो गया, दैट यू विल शो इन अदर एक्सपेंसेस। देन यू विल ऐड ऑल द एक्सपेंसेस, राइट, टोटल एक्सपेंसेस, total of every heading should be shown separately। फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब आप टोटल इनकम में से यू विल सब्ट्रैक्ट टोटल एक्सपेंसेस, एंड देन टैक्स रेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल फाइंड द टैक्स, subtracted from the total income before tax, you will get total income after tax। This whole format when it will be asked in chapter number 3 or chapter number 4, तो अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप तो आसानी से करते जाएंगे, उसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे उतारना पड़ता है। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ कॉलम बनता है, 2 कॉलम और बनेंगे इसके आगे, जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है, दैट्स ऑल। बाकी ये पूरा ऐसे उतारना पड़ता है। दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर्म, यू विल डू इट एज इट इज, फिर उसके बाद आगे थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में यू विल डू द कैलकुलेशन। सो दैट इज totally based on the format of statement of profit and loss account and the format of balance sheet। कई बार क्या होता है ना, आइटम्स दिए होते सिर्फ, पहले आपको उसे बैलेंस शीट के प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो अगर फॉर्मेट नहीं पता तो कैसे लिखेंगे, फिर तो आपको पता नहीं चलेगा। यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर, you have to write a particular item under its proper subheading and under the heading, major heading। जब वो फॉर्मेट में आप लिख लेंगे, देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 आइदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट और चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ध्रुव, ऑन रिकॉर्ड प्लीज टेल दिस फॉर्मेट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, थोड़ा सा मास्क नीचे, लाइक दिस, एंड लाउडली। Revenue from operation. Also, if you can explain what will be the things there. Revenue from operation. Other income. Total revenue. Expenditure. ऐसा पता नहीं चल रहा है, तुम लाइन से उसको बोलते जा, what will be added to what will be the items under it, देख के बोलो, no problem, but it should be clear, तुम्हें ये समझ में आ गया। Revenue plus operation. Revenue from operation plus income. Total revenue. Total revenue minus expenses. Expenses like cost of material consumed or purchase of stock in trade, changes in inventory, or employee benefit fund. Depreciation and other expenses. Depreciation and amortization expenses, okay। उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा। Profit, yes, फिर profit will be प्रॉफिट प्लस the total of, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। that will be the difference of third column, total income minus total expenses, very good। Then profit minus income tax, फिर profit after tax आ जाएगा। ठीक हो गया।
Good. These are the different items of this particular format. Okay. Make it very, very clear. Every day go through. I have sent you in the group this format, balance sheet format, each and every item of the balance sheet and under which head and which heading it is. I have already sent you in the group. This one also I have sent you format of statement of profit and loss account along with इसके अंदर और किस सब हेडिंग के अंदर क्या क्या आइटम्स हैं. If it is clear to you, within this week you are done with chapter number 3 and 4 also. And mind it, chapter number 5 is a lengthy chapter, but you can score 2 marks from that particular chapter very easily just by learning the formulas. There are 15 formulas. How many? रेशियो चैप्टर है, फॉर्मूला है भाई इसमें सीधे सीधे. करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 4 मार्क्स का चैप्टर है. आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन जो पूछेगा, इफ यू राइट द फॉर्मूला यू गेट 2 मार्क्स, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू ओनली दैट मच, बिकॉज if you go on with that chapter, there are 15 formulas. For every formula you have to do at least 20, 25, 30 questions. होगा 300 से ऊपर क्वेश्चन. You cannot do it because you do not have time also. इससे बढ़िया क्या है? Learn the formulas. At least write the formula, you get 2 marks. You can sacrifice 2 marks for other things, other important things. जहां उतने ही टाइम में पता नहीं कितनी सारी चीजें you can do. You can revise this chapter, you can revise that cash flow, you can do dissolution, you can do NPO. वहां मार्क्स पक्के बने, क्योंकि न्यूमेरिकल जो रेशियो का आएगा that will not be easy one. तो कोई गारंटी नहीं कि आपको, लेकिन फॉर्मूला लिखने के आपको हाफ मार्क्स तो मिलेंगे, 2 मार्क्स. सो प्लीज रेशियो चैप्टर में फोकस मोर ऑन द formulas rather than calculations, and if you can do well and good, if you are for 100%, you will do everything. I am telling for average and below average students, जिसमें भी आप अपने आप को कंसिडर करते हैं, you can go for that. Last chapter is very important. Last chapter, cash flow statement, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, इन दैट प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो कैश फ्लो का एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड रेशियो का भी करना पड़ेगा वहां पर, बट वहां अगेन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टेक्निक. हालांकि दोनों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड कैश फ्लो, बिकॉज रेशियो, कैश फ्लो, इनके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी सॉल्व करना है. आपको पता होगा ना, पहले भी बता रखा है, इन द प्रैक्टिकल्स, हमारा प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता जैसे साइंस वालों का होता है एवरीथिंग और वो प्रैक्टिकल अपना उसमें भी करते हैं, लैब में मिला के उनको नंबर मिलते हैं. हमारा रिटर्न एग्जाम ही अलग होता है, उसमें अकाउंट्स में बिल्कुल बोर्ड की कॉपी आती है वहां से, उसी में आपको सॉल्व करना होता है, एंड यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस, एक कैश फ्लो का और एक रेशियो का. रेशियो में 3 मार्क्स के 2 मिलेंगे, 6 नंबर हो गए. कैश फ्लो 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स. सो 12 मार्क्स का तो आपको सॉल्व करना होता है पेपर. अगर 12 में से आपके 10 मार्क्स आए हैं तो मैक्सिमम आपको कितने मिल सकते हैं फिर? 18 प्रैक्टिकल में. जिसके 12 में से 12 आते हैं उसी को 20 में से 20 मिलते हैं इन द बोर्ड्स प्रैक्टिकल. तो 12 मार्क्स तो बिल्कुल आपके हाथ में है, अकाउंट्स के आपके हाथ में, और जितने उसमें से लाएंगे बाकी 8 में से भी लगभग वैसे ही मिलेंगे. भाई आपके 12 में से आ रहे 6 मार्क्स, तो 8 में से फिर वो 4 ही देंगे, आपको 5 ही देंगे.
और आप आसानी से ला सकते हैं बिकॉज दीज टू चैप्टर्स रेशियो एंड कैश फ्लो। तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में आपके लिए 40 मार्क्स की बुक है देखा जाए तो। 20 मार्क्स का तो आप एग्जाम में भी करेंगे इसमें से, और 20 मार्क्स आपका जो है प्रैक्टिकल के लिए भी है। सो लास्ट 2 चैप्टर्स जो है जितनी अच्छी तरह आप कर सकते हैं, डू इट सीरियसली एंड सिंसियरली। लास्ट 2 चैप्टर्स। फोर्थ project file is there is project file also। तब प्रोजेक्ट भी तो बनाएंगे अकाउंट्स में। तो so this should be the, I have told you today about the criteria, the marking scheme, what are the important ones for you, how you can go about and how you can do it. So don't make a mockery of it. Be serious now, otherwise the time will tell you about seriousness of it. Once again, today you go through it. Tomorrow onwards, every day 2 periods। एक में आपको बिजनेस पढ़नी है, एक में अकाउंट्स। और बिजनेस तो अब कंप्लीट होने वाला है। ऑलरेडी वी आर टुवर्ड्स द लास्ट 2 chapters are left। Within this 15 days we will be able to finish that, and many of you have still not started, whole business is over। तो आप अपने आप पढ़ेंगे, that is up to you, that is your headache। So